آیا نمبر 6 12واں سورہ. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في کتاب مبین. کس میں درج ہے؟ یہ ایک کتاب مبین ہے، لوح محفوظ ہے، جس میں ہر چیز درج ہے، ہر چیز درج ہے. ایک کیڑے کی بھی ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے چونٹی کی بھی ہے، اڑنے والے، بحری، زمینی، ہوائی، اڑنے والے بھی، زمین میں چلنے والے بھی، اور بحری بھی. بحری بولے تو یہ جو میرین مخلوق، پانی کی مخلوق ہے، وہ بھی ہر چیز کا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز. میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کی. وہ کیا تھا؟ اندر تھا وہ چٹان در چٹان تھا، وہ پہاڑ کے اندر، اور ایک چٹان کے اندر ایک چٹان، اس کے اندر کالا کیڑا تھا، نظر نہیں آنے والا کالا کیڑا. اور اس کے منہ میں کیا تھا؟ پتا ہرا پتا، تازہ پتا، سوکھا موکھا نہیں. سوکھا موکھا وہ جو گرے کلر ہو گیا رہتا ہے، مرجھا گیا، وہ نہیں. ہرا پتا، تازہ پتا. کیسا؟ اللہ رزاق ہے، سب کی خبر گیری کرنے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، سب کا پرووائڈر ہے، اللہ پرووائڈر ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وما من دابتن، وما نافیہ ہے یہ، اور نہیں، من دابتن کوئی چلنے والا، زیرو جاندار، وہ چاہے رینگنے والا ہو، چاہے اڑنے والا ہو، چاہے چلنے والا ہو، جھک کر چلنے والا، زمین کو لگ کر چلنے والا، یا پروں کے بل اڑنے والا، یا مچھلی جیسا تیرنے والا، کوئی بھی جانور. زیرو بولے تو روح والا، جو جان رکھتا ہے. فی الارضی زمین پر، الا مگر، علی اللہ رزقها، ہر یک کی رزق کی ذمہ داری، رزق پہنچانے کی اللہ کے اوپر ہے. ہر ایک چھوٹے چھوٹے سے کیڑے کی بھی، بڑے سے بڑے جاندار کی بھی، انسان کی بھی. تو ہر اللہ اگر چھوٹے ایک جانور کی بھی خبر گیری کر رہا ہے، اس کو بھی اس کی جگہ اگر رزق پہنچا رہا ہے، تو انسان کو تو ضرور دے گا نا. یہ جو لوگ واویلا مچاتی، کئی بار ہم نے سنا ہے اللہ نظر نہیں کر رہا، اللہ آنکھ کھول کر نہیں دیکھ رہا. سنے ہوں گے آپ بھی. اللہ آنکھ کھول کر دیکھا تو سب ہو جائے گا، آنکھ نہیں کھول رہا. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ سب شرکیہ کلمات ہیں. یہ آگے کے آیات میں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث نبوی کوٹ ہوتی ہے کہ اللہ جس حال میں بھی رکھے، جیسے بھی رکھے، وہ ہمارا مولا ہے، ہوا مولانا. وہ جس حال میں بھی رکھے، جیسا بھی رکھے. یہ جو ہدایت کا یہ ہمیں یہ دے دیا ہے، ہدایت کی سعادت جو مل گئی ہے، اس کے بل بوتے پر ہم آخری ہماری دائمی زندگی تو اچھی ہو جائے گی. کون سی زندگی؟ آخری، انشاءاللہ جنت تو ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ. یہ جو ایمان کا نور ہمارے قلب کو منور کر دیا ہے، یہ ہمیں ضرور جنت میں لے جائے گا. روح کیسا ہے وہ؟ کیا وہ دانے کے برابر چھوٹا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو من ہے دل میں، دل میں اگر ایمان ہے تو اللہ اسے یہ کرنا ہونے نہیں دے گا، ضائع ہونے نہیں دے گا. اسے آخر کار جنت مل جائے گی. بھگتے گا، وہ اپنے عمل کا حساب بھگتے گا، لیکن بعد میں تو جنت مل جائے گی. تو یہ جو ہے جس حال میں بھی رکھے، اگر شکر کرے. نعمتیں چھن بھی جا سکتی ہیں، نعمتیں اللہ عطا کر کر بھی دیکھتا ہے. تو جب کفور ہوتا ہے، ایک آیت میں آ رہا ہے، شاید اسی میں آئے گا، فخور بولے تو کیا؟ فخر کرنے والا. فخر اچھے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. افتخار جو آتا ہے نا، نام بھی افتخار رکھا جاتا ہے، یہ فخر سے ہی ہے. اس کا روٹ ورڈ فخر ہی ہے. یعنی ایک قابل فخر کوئی چیز، کوئی مایہ ناز چیز، کوئی اچھا کام، اسے افتخار بھی کہتے نہیں، فخریہ انداز میں بھی کہتی. اور ایک فخر کیا ہوتا ہے؟ جو اترانے لگ جاتی، تکبر کرنے لگ جاتی، اسے بھی فخر بولتے، وہ بھی فخر ہے. اور یہ فریحہ جو یوز ہوتا ہے نا، وہ بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. نیگیٹو بھی ہوتا ہے اور پازیٹیو میں بھی آتا ہے.
खुश हो जाना भी है और इतराना भी है। कभी ज्यादा मिल गया तो इंसान फूले नहीं समाता, सब अपने आप की तरफ मंसूब करने लग जाता है। मेरी जहानत, मेरी चालाकी, मेरी प्लानिंग, ये सब कुछ मेरी ये फरीहा है। ये खुश हो जाना अपने आप पर, सेल्फ सेंटर्डनेस, खुद सताई, खुद सताइश, खुद नुमाई, और क्या बोलते हैं, खुद की तारीफ कर लेना, खुद को बड़ा समझना, बड़ा अपने बड़ाई कर आप, लेना। हाँ अपने आप को ही, अपने आप को मंसूब कर लेना सब कुछ हम्म, जो भी दिया। हालांकि जो भी हमें मिलता है वो अल्लाह की तरफ से है। अगर शुक्र गुजारे, शकूर रहा बंदा तो अल्लाह और ज्यादा, लइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, लइन कफर तुम लाइन कफर तुम अजाबी लशदीद। अजाबी लशदीद। अजाब, मेरा अजाब, या मुतकल्लिम, मेरा अजाब, और लामे ताकीद, बहुत ज्यादा शिद्दत का अजाब होता है अगर तुम कुफरान नेमत करोगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कोई जानदार ऐसा नहीं है जीरो जमीन पर चलने वाला, कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मा ना ले रखा हो। वो उसके मुस्तकिल ठिकाने को भी जानता है और आर्जी ठिकाने को भी जानता है। हाँ, ये आपको मैं बताना चाहती थी, ये इसकी तफसील बहुत ज्यादा है। मुस्तखर रहा, मुस्तौदाहा, मुस्तखर रहा, इसका रूट वर्ड क्या है? खा रा है इसका, खा रा, खाफ, खरार भी इसे से लिखते नहीं, खरार, खरार पकड़ना, कहीं ठहर जाना, रुक जाना। हाँ, आप कहीं जाती, बीच में थोड़ा पास करते, कहीं रुकते, तो वो क्या, खरार लेना। और कभी कभी लॉन्ग खरार भी हो जाता है, कभी कभी कहीं रुक जाते, वक्फा लेने को भी बोलती है, लॉन्ग ठहर जाने को भी बोलती। उसके बाद मुस्तौदा जो आता है वो सौंप देने का है, यानी मुस्तौदा हमारे हर एक का क्या है, खबर, खरार दुनिया। मुस्तखर जो है ये दुनिया, मुस्तौदा जो है इंसान के लिए वो क्या है, खबर, हमेशा की बात है जो पलट जाती वो उसका रूट वर्ड बोलती हूँ। खरर, अब ये क्या है, खुर्रतुल ऐन जो नाम रखा जाता है ना, खरर बोले तो ठंडी, ठंडा। अब ठंडी जो भी चीज है वो जम जाती है नहीं, जरा ये टेम्परेचर कम हो गया तो क्या होता है, पानी बर्फ बन जाता है, जम जाता है। अब ये ममालिक देखिए, ये जो ममालिक है ठंडे ममालिक, वहां से भी बर्फ बन जाता है, पानी बर्फ बन जाता है, वो कई कई घंटों तक पिघलता भी नहीं। तो ये खरर क्या है, खुर्रतुल ऐन नाम भी रखा जाता है, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। ठंडक, ठंडक, आंखों की ठंडक, ठंडक, खुर्रतुल ऐन बोले तो आंखों की ठंडक। अब ये क्या है, इसमें ज़र्फ है, ये ज़र्फ मकान है, जम जाना, किसी जगह पर जम जाना। जब सर्दी हो जाती है सब चीज जम जाती है, नहीं, घर बना लेने को भी बोलती हैं, जम जाने को भी बोलती हैं, अड्डा जमा लेने को भी इस्तिक़रार पकड़ना बोलती। इसी से खरारगा भी इसी से है, खरारगा, खरार, खरार पकड़ना, कहीं ठहरना। छुपने की जगह को भी बोलती हैं, ठहरने की जगह को भी बोलती हैं, रहने की जगह को भी बोलती हैं, इस्तिक़रार पकड़ना। अब ये क्या है, इसमें ज़र्फ है और ये ज़र्फ मकान है। मुस्तौदा का रूट, अब ये रूट में बताइए आपको, मुस्तखर्रा का क्या रूट बताइए आपको, क्या रूट वर्ड है इसका? तीन खरार, खरार, खरार में मानी बताइए, तीन ज़र्फिया बताइए ना, किसी को याद है? खाफ रे बोले इसने। वेरी गुड, वेरी गुड, आई वांट दिस, आई वांट दिस, खरर, खरर। I want you to concentrate on the root, because if you catch the root, you will catch the everything. मीनिंग भी मालूम हो जाता है उसका, क्या है मतलब, अल्लाह क्या बोलना चाहता है वो मालूम हो जाता है आपको। मादा समझ में आ जाना, मादा असली बोलते हैं इसे, रूट वर्ड, मादा असली। खाफरा रा, खाफरा रा, खर्रा, खाफ के साथ दो रे जमा डालो, खुर्रा, उस वास्ते मैं नाम बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करते वक्त ऐसा बताती हूँ, खुर्रा। अब यहाँ खर्रा है, वो खुर्रा है, वो आंख की ठंडक के वास्ते, ये भी ठंडक जमने की चीज, खाफ रा रा रूट है ये, हाँ,
मैं फिर से मैं आपका याद कर रही हूँ कि आप रूट वर्ड याद रखो। अब ये मुस्तौदा का रूट बताने जा रही हूँ आपको। वो ठंडी के का रूट मुस्तौदा मुस्तौदा। मुस्तौदा क्या स्पेलिंग है यहाँ बताइए मुस्तौदा का। मीम मीम सीन सिंह ता ते वो ता वाउ दाल चश्मे दो चश्मे है आइन अली। हा हाँ नहीं आइन बताइएगा, हा हाँ नहीं आइन हाँ, बताइएगा। मुस्तौदा हाँ जमीर है ये, हाँ जमीर है। ओके उसका उसका बोलने के लिए एक मोहन्नस चीज है, आइन हा यानी अगर इंसान की जिंदगी लिए तो इंसान मोहन्नस है। इंसान नफ्स नफ्स बोलते ना, नफ्स मोहन्नस है। मुस्तौदा इंसान का यानी उसका उसका मुस्तौदा वापस पलटने की जगह वो क्या है, खबर है, वो बताया जा रहा है। तो हाथ पलटने की छोड़ दीजिए, मुस्तौदा। मुस्तौदा ये रूट वर्ड है। वदा वदा वऊ दाल ऐन, वऊ दाल ऐन। वदा वदा इसी से वदा विदाई, इसी से विदाई। बच्ची को विदा करती हैं, लड़की को शादी करती हैं, विदा करती हैं, अपने पास अमानत थी दूसरों के घर भेजती हैं, यही विदाई है। इंसान जिंदगी गुजारता है, दुनिया में गुजारता है, लंबी जिंदगी गुजारता है, उसके बाद मर गया तो उसके रिलेटिव्स क्या करती हैं, उसे विदा कर देती, नवा धुला कर, खुशबू लगा कर, सुरमा लगा कर, उसको तैयार करके किसके हवाले सुन देती, खबर में डाल के आ जाती। अब वो मुस्तौदा वो वहां उसका घर है, वो ठिकाना है, वहां रहेगा वो। ये विदाई है, विदा होने के किसी को किसी की अमानत विदा करने रखने की विदा जगह, करना किसी जगह, हाँ विदा करना, विदा करके कहीं भेज देना। जहाँ अमानत रखी जाती है उसे मुस्तौदा कहते हैं, जहाँ अमानत रखी जाती है। ये अमानत है, इंसान अमानत है, फिर उठेगा नहीं, जाया तो नहीं हो जाएगा, फिर उठेगा, रोजे महशर उठ जाता है फिर। तो ये दूसरा एक तो हो गया, रोजे महशर तो उस पर असर नहीं करेगा पहला। दूसरा जब होगा ना, दूसरा कितने वक्फे में होगा, 3 दिन में होगा, 30 साल में होगा, 40 साल में होगा, कितना अरसा लगेगा वो नहीं पता, वो अल्लाह ही को पता, इल्म गैब है ये। तो उसके बाद जो दूसरा ये होगा, सूर फूका जाएगा दूसरी बार, तो तब जो उठ जाता है ना, तब उठता है उन्हें, तो कोई जाया होने की चीज नहीं। अब ये मुस्तौदा मुस्तखर्रा दुनिया हुई उसके वास्ते, जहां उन्हें करार पकड़ा, जहां उन्हें ठहरा, जहां उन्हें जिंदगी गुजारा, पूरी जिंदगी, वो क्या हुआ, मुस्तकर्रा हुआ, करार पकड़ने की जगह हुआ, ठहरा उन्हें, यहाँ पर ठहरा। अब मर गया, मरने के बाद उसकी खबर मुस्तौदा हो गया। विदा करके जहाँ जाता है, विदा होकर जहाँ जाता है, वो उसकी खबर है। अब इसमें दूसरे मानी भी हैं। अब आप अगर तफसील में जाकर कोई बड़ी हदीस लेकर पढ़े या कोई बड़ी रिवायत पढ़े तो एक और बात भी आती है। वो क्या है बोले तो, ये जो मुस्तखर्रा है ये बाप की सुल्ब है। बच्चा जो पैदा होता है वो कॉम्बिनेशन से पैदा होता है, नहीं माँ बाप के कॉम्बिनेशन से पैदा होता है। ये पहले माँ बाप मिलने से पहले भी मुस्तखर्रा का था बोले तो बाप की पुश्त में रहता है, नहीं सुल्ब करके बोलते हैं, सुल्बी औलाद करके बोलते हैं। एक पालतू औलाद, एक सुल्बी औलाद है। सुल्बी औलाद इसलिए बोलते हैं कि बाप के सुल्ब से, सुल्ब स्वाद लाम बा, सुल्ब स्वाद लाम बा ये सुल्ब बाप की पीठ में होता है। ये जो मनी का वो जो फ्लूइड होता है ना, वो पीठ में होता है। वो जब कंबाइन होता है फिर मिलने के बाद का किस्सा वो, हाँ मिलने से पहले भी ये सुल्ब जो है वो है, मुस्तखल है, हाँ मर्द के सुल्ब में है वो। उसके बाद मादा से मिला, बीवी से मिला, फिर वो जो जन्म लिया। ये सिर्फ इंसान के ताल्लुक से ही नहीं, हर जानदार के मामले में भी यही उसूल अप्लाई होता है। नर में क्या होता है, सुल्ब में, उसके सुल्ब में होता है, और यहाँ मादे से मिलने के बाद वो मुस्तौदा। मुस्तौदा क्या, अब नर और मादा मिल गए, यानी मियाँ बीवी का मिलाप हो गया, उसके बाद जो पैदा हो और उसके बाद जो हमल ठहर गया, अब वो क्या हुआ, मुस्तौदा। अब यहाँ जन्म ले रहा है, उसके बाद आ जाता है, नहीं अब ये ऐसा है, ये दूसरा मतलब ऐसा भी है। ये 2-3 मतलब से समझाया गया है रिवायतों में।
ہمیں سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک انسان کی زندگی سمجھ لیں. مستقر ہمارے لیے دنیا ہے اور مستودع ہمارے لیے کیا ہے؟ امانت کی ٹہرنے جگہ ہے، امانت کی جگہ. ودائی جگہ، کون سی جگہ وہ؟ ودائی جگہ. امانت دنیا مستقر ہو گئی بھائی، ہاں اس کے اب بعد وہ مستودع کیا ہوا؟ ٹہرنے کی، وہاں ٹہرنے کی جگہ، وہاں ودائی جگہ، رہنے کی ودائی جگہ گریو جگہ گریو دنیا. امانت گریو امانت ہے دی Very جاتی good, ہے. گریو very good. Grave گریو is یا the mustauda. اچھا Grave گریو. اما is the mustauda. Concentrate, please concentrate. ہاں. Grave is the mustauda. World is the mustaqar. سنو دنیا یہاں ورم سنو، مستقر. یہ لکھ جا کہ سب کو دے دو. اسی دن بولی میں یہیں چھوڑ کے چلے گئے. وہاں رکھتی ہوں میں مستقر جو ہے دنیا رہنے کی جگہ ہے. مستودع پانی کیا سے ہے؟ پوچھنا. قبر ہے. ہمیشہ گریو رہنے کی جگہ. قبر ہمیشہ رہنے کی جگہ، پھر اٹھائے جانے تک رہنے کی جگہ. اس کے اور بعد ہمیشہ کی ہاں جگہ جنت ہے یا دوزخ ہے. اس کے بعد پرماننٹ وہ مستودع فیصلہ کیا ہوتا بات. ہے؟ ہاں، فیصلہ ہونے کے بعد پرماننٹ مستودع کیا ہوتا ہے؟ یا تو جہنم ہوتا ہے یا جہنم ہے تو یا نہیں تو جنت جنت. ہوتا ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ یہ ایک بات ہی سمجھانا جی چاہتی جی ہوں. آیا ہاں، ہاں اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور اسے مستقل ٹھکانے کی بھی جگہ کو وہ جانتا ہے. انہیں کہاں زندگی گزار رہا ہے، دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ. عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو اس کا پرماننٹ ٹھکانا ہوتا ہے وہ بھی. اس کے بعد کا اور ایک پرماننٹ ٹھکانا ہوتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. جہنمی ہے یا جنتی ہے، جنتی. اللہ علام الغیوب ہے، عالم ہے، سب کچھ جانتا ہے. دنیا میں یہ ایک فلسفیانہ حقیقت بیان کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی جاندار ہے، چاہے چھوٹی سی کیڑی ہو، چاہے چونٹی ہو، چاہے بڑا سے بڑا انسان ہو یا کوئی بھی ہو، ذی روح جو بھی ہے، اس کے متعلق ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اللہ. اب یہ جو بولتی نا اللہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ آنکھ کھول کر نہیں دیکھ رہا ہے، ہاں، یہ کیسی بات ہوئی؟ اب اس سے تو باطل ہو گئی نا. کفرانہ. شرک کی جگہ. ہاں کیا شرک کلمات سے ہو گئے. کفر. اور یہ جو انہوں بول رہی وہ یہ چیزوں سے باطل ہو گیا. وہ اللہ ہر چیز کی خبر گیری کر رہا ہے، ہر چیز اسے جب چونٹی کی حقیقت کو انہیں جانتا ہے کہ کہاں ہے، وہ کیا کھا رہی ہے، اس کا کیا رزق ہے، رزق ہم پہنچانا ہے، تو انسان کیا چیز؟ انسان تو اشرف المخلوقات اللہ بنایا، اس کا ایک مقصد ہے نا. انسان کا ایک مقصد ہے، مقصد حیات ہے، ہمارا مقصد زیست ہے. ایسے ہی نہیں پیدا کیا، یہ سارے کائنات کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور اس میں اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کرنے کا ایک اور بہت بڑا مقصد ہے جسے ہم نہیں جانتے. ہم آ گئے، زندگی گزار رہی، عیاشی میں گزار رہی. ہمارا مقصد حیات الا لیعبدون وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، پیدا ہی کیا ہے اللہ نے کس انسان لیے؟ اور جن. عبادت کرنے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ عبادت. کی عبادت سے، اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے، میں ٹھیکیدار ہوں اس کے رزق کا. ہاں، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا، اسی میں کپے رہنا، صبح سے شام تک اسی میں، خود کی سود بھی نہیں، کھانے کی سود نہیں، ریسٹ کی سود نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اپنے نفس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں فرمایا، اپنے نفس کا بھی تم پر ذمہ ہے، حق ہے، اپنے نفس کا بھی حق ہے، اسے بھی تھوڑا ریسٹ دینا. کوئی 3 لڑکے تھے جنہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں دن بھر ہم روزہ رکھیں گے اور رات کو پوری عبادت میں کھڑے ہو جائیں گے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور کہا کہ تمہارے نفس پر بھی تمہاری ذمہ داری ہے، حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے تم پر، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے. یہ سب پہچانتے ہوئے، اس کو برابر پورا کرتے ہوئے تمہیں ادا کرنا ہے. نمازیں بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اہل و عیال کی بھی خبر گیری کرنی ہے، تم اپنے نفس کو بھی ریسٹ دینا ہے، پوری وہ رات جاگنا. شمسی وہ ولی اللہ ان کے بارے میں ایسے سٹوریاں ہیں سو کہتے کہ دن بغیر وضو کے نمازاں پڑھے، کہتے کہ راتاں جاگے، ایک ٹانگ پکڑ کو عبادت کرے کہتے کہ دن تک. ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل بالکل نہیں ہے. نہیں ہے.
कैसा रिकॉर्ड मिलता है नहीं मालूम। वो बशरी अच्छा तौर पर तो बशरी तकाजे इंसान के साथ लगे हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ साथ भी जब थे ये तकाजे, तो हमें दूसरों को कैसा मुस्तस्ना कर सकते हैं? कर नहीं, अब सकते दूसरों हो को जुल्म नहीं, करे सर का हो जाता वो। हाँ नहीं, हम्म वो एक है अलग भी की बात नहीं हो गई। नहीं हम्म भाई, इट्स नॉट पॉसिबल एज ए ह्यूमन बीइंग, तुम्हें उसको ये बिलीव भी नहीं करना। हाँ, वो हम्म है हमें कैसा वो तुम्हें करना पॉसिबल? है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित है। अबित है। ये कायदा कुल्लिया क्या है बोले तो एक उसूल है, प्रिंसिपल है, हम्म, वो जो हुजूर से और सहाबा से साबित है। हाँ कभी हुजूर ने ऐसा नहीं कहा कि पेशाब पाखाने की मुझे हाजत नहीं है, मैं बगैर वजू के रह सकता हूँ, मैं बगैर पेशाब पाखाने के गुजार सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपके साथ भी ये हाजत थी, कभी कभी वजू भी बनाना पड़ता, कभी कभी पानी नहीं मिलने पर आप तयम्मुम भी करते। तयम्मुम कर ये लेते। सारी हाजतें लगी हुई थी ना, जो बशरी तकाजे हैं वो आपके साथ बशरी, भी थे हाँ, और सहाबा करम से बशरी भी ये कहते हैं। साबित नहीं है। हम्म, तो हमें दूसरों के साथ यकीन करना ये बादस खियास चीजें है, बैद अकल नहीं। हाँ, बिल्कुल। अल्लाह अजमियां ताला को वो फरमाए, अट्रैक्ट करने के वास्ते वैसा बोलती हैं। अजमियां क्या करती हैं, यो इन्हें इतने पार साई, इतने इबादत गुजारी हैं, उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट होती। कई को जब ये अट्रैक्ट करना, किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होता, नहीं होना ना। वो हुजूर जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सहाबा। बोले ना, दिलां को हम्म कान को मुंह ऐसे मोहर लगा देता हूँ कर को। और हाँ लगा जिसके, हाँ जैसे मोहर लग गई है उन्होंने यकीन हम्म, करती हैं सब बातों को। हम्म, जो वैसा। इल्म जानता है, ये ला इल्मी है, ला हाँ, इल्मी और कम इल्मी। कम कम, इल्मी रही तो भी हाँ, इंसान भटक जाता है, ला इल्मी रही तो भी भटक जाता है, हाँ, बहुत ज्यादा उठ पटंग हो गया तो भी भटक जाता है। कई ऐसे आदमी आई, आदती होगी तभी भटक जाता है। मैं एक वाकया हुआ मेरे साथ, तो मैं ये नाम नहीं कंफ्यूज लेना चाहती, हम्म कोई ट्रेजेडी हो गई है उसके वास्ते, ऐसा वाविला, ऐसा शिकवा शिकायत अल्लाह से, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बिल्कुल। अल्लाह कहता है कि जब कोई मुसीबत आती है, कोई आजमा, मैं मेरे अपने को ही आजमाता हूँ, दूसरों को आजमाने की जरूरत नहीं है। दोज़खियों को आजमाने की क्या जरूरत, उसे बहुत दे डाले अल्लाह। छोड़ डाले मुसीबत जब आजाद, अपना छोड़ दिया, उनको आजाद छोड़ छोड़ दिया। डाले। जो तुम्हारी छोटी छोटी नेकी भी मुझे वहां आकर तलब नहीं करना, मुझे मेरी ये नेकी का बदला नहीं मिला ना, वहां आकर नहीं तलब करना। यहाँ ज्यादा ले लो परवाह नहीं, वहां की जो नेमतें हैं, वहां के जो रहमत है, अल्लाह वहां जो अपनी रहमतों से इनायत किया है, वो कुछ और ही चीज है, कोई अरसा चीज है, वो कीमती चीज है, गिरा कदर चीज है, जो इससे कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो उसके वास्ते मैं एक एग्जांपल बोली आपको, एक अच्छी चीज आप खरीदने चाहती हैं, हर जाविये से देखती हैं, हर एंगल से देखती हैं, फोन बजा कर देखती हैं उसे, चुपके ऐसे ही नहीं खरीद लिया जाता नहीं। एक हाँ, एग्जाम है, जी, एक ओहदा बड़ा देना है आपको, बहुत बड़ा ओहदा देना है, बड़े एग्जाम से गुजरती हैं कि नहीं? मामूली आदमी को तो गुजरना। कभी भी नहीं लगता, हम्म, जो जानता ही नहीं कि ये काम कैसा करना है, उसे दे हम्म, डालती हैं क्या? नहीं देते नहीं, ना, नहीं दे, ऐसा नहीं नहीं कर देता। सकता वो। अब ये जो अहल होता है, जो जन्नत का अहल होता है, उसके जो अमाल, इसके वास्ते कोई अमाल रखा है, कोई एक ये रखा है, पैरामीटर रखा है अल्लाह, इसके ऊपर पूरा उतरिया तो इसे ठोंक बजा कर देख लेता है, हम्म, मेरी मोहब्बत कितनी है, दुनिया की मोहब्बत कितनी है। अब जब अनबिया करम पर गुजर गया तो हमारी क्या औकात है हाँ हमें वो चीज अल्लाह। देखना एक्चुअली, हमें वो देखना सब स्टोरियां जो सहाबा के ऊपर गुजरा है, हम्म, वो देखे तो हमारे पर 1% भी नहीं वो। कुछ भी नहीं है हमारे ऊपर है। और हम्म वो तो बहुत ज्यादा थे नहीं क्या, इखलास में बहुत हाँ। ज्यादा, उनकी इबादत का अब क्या अलग था, उनका हजरत कॉन्सेंट्रेशन कैसा था। हुसैन का हाँ, किस्सा ले लो आप, क्या जाको क्या तकलीफ उठाए उन्होंने क्या जब उनकी तकलीफ उठाए, शहादत हुई। हाँ, पानी भी नहीं हाँ मिला उनकी है, बच्चे कितनी हम्म, तकलीफ उठाए उनके, और हर कोई हम्म, शहीद हो गया, कितने शहीद हुए वहां पर, क्या बिल्कुल। चीज के वास्ते। वो एक हम्म मिस ये हो गया था वहां पर, कोई कंफ्यूजन हो गया था, ये जो लेटर्स गए वो भी गलत है, वो बड़ी लंबी स्टोरी है वो, लेकिन हुआ तो सही, गुजरे तो सही, वो जो जी, हालात से गुजरे, जो भी हाँ ज्यादतियां उन पर हुई, जैसी भी हम्म तकलीफों से उनका सामना करना पड़ा, उन्होंने वाविला मचाया क्या, ये मेरे ऊपर क्यों हुआ, हम्म मैं तो हम्म, अल्लाह के रसूल का नवासा हूँ, कहा उन्होंने कभी, हम्म, बड़ी नहीं, खल्ला दिली हाँ से, बड़ी खुश दिली से हाँ। उन्होंने सब कुछ से। अहमद अहमद दीदा दो किस्सा बड़ा अच्छा मेंशन कर को बोलती, हुजूर हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म नहीं नहीं, हाँ कई कौन अपने नवासों को नहीं बचा सके, हम्म अल्लाह के पास की नहीं फरमाइश करे, अच्छा की नहीं ये करे,
तो अहमद हिदायत बोलते हैं, अल्लाह खुद बोलता है कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली चढ़ाते थे, उन्हें मेरा बेटा मैं उसे नहीं बचा सका, तो हुजूर कैसा अपने नवासा को बचाते हैं मजाक कर को क्रिश्चियंस को बोलते हैं अच्छा अच्छा, उनकी थियरी हाँ को बातिल कर रहे हैं सब। हाँ, बोलती है अल्लाह परेशान था, मेरे बेटे को मैं नहीं बचा सका, तो तुम्हारा तो क्या हुजूर कैसा अपने नवाज से उनको बचा सकते हैं घर को बहुत अच्छा बोले वो एनी पर्सन विथ कॉमन सेंस समझ लेता उन्हें क्रिश्चियन समझ सकता है। ये इल्म की जरूरत है, और सबसे ज्यादा किस बात की जरूरत है मालूम है? पहचान कुरान की। तो तर्जमा पढ़ रही हैं आप, रमजान आ रहा है, पढ़ती कितने दौरे करवाती मालूम है? सट पढ़ने को जा सकती हो ना, लेकिन बाद में पूछो क्या पढ़े, ये सूरे में क्या था, ये सूरे में क्या था, अल्लाह का मकसद क्या है, क्या बयान करना चाहे, क्या हिदायत है, क्या तालीम, कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं मालूम रहता। ऐसा माना पढ़ना मालूम रहा तो नहीं बोलना, माना ऐसा मालूम पढ़ना रहा तो तालिबान बोलना। देता है। एक्चुअली शमसी, अब देखो हमें किसी भी मिलो, मैं भी हमारे यंग जनरेशन के बच्चों से जब मिलती हूँ, उनको एक ही ताकीद करती हूँ मैं, एवरी डे एटलीस्ट एक 3 to 4 आयत बच्चे समझ को पढ़ो, हाँ, वो बस मैं वक्त करो। ताकीद करती हूँ उनको, एवरी डे एक एक 4 आयत पढ़ो, समझो। समझ मैं बोलती हूँ हाँ हमारी गलती हो गई है, जो हमें भटक गए, जो गलत रास्ते पकड़े, जो गलत बिलीफ हमारी है, जस्ट बिकॉज वी हैव नॉट अंडरस्टूड कुरान। और मालूम नहीं अल्लाह मियाँ तुम ना कितना अजर दे रहा, हमें इतने आदमियों को तुम एजुकेट कर रही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारी पूरी दुआ तुम्हारे साथ है शमसी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी, मैं वो बात जरूर। अब मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे नहीं पास बैठ को हमें इतनी तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह की कितने की शुक्रगुजारी है कि हमने ये मौका दिया। जी, मन कुराना व अल्लामा, आप लोगों का भी बड़ा दर्जा है इसमें। क्या बोल रहा है अल्लाह मालूम है? पढ़ाने वाला सिर्फ नहीं, पढ़ने वाला भी, पढ़ने वाले वाला को भी। भी इंटरेस्ट रहा तो ना बैठ को खैरुकुम बोले पढ़ने तो का इसका मतलब मैं समझाती हूँ। है। खैरुकुम, तुम में बेहतर, खैर बोले तो सबसे अच्छा, ये इसमें तफसील में भी आ जाता है। तुम में सबसे अच्छा वो है जो मन ताल्लमा, जो सीखे, वो अल्लामा, और उसको सिखाए। सिखाए। हाँ, सीखना ही नहीं, उसको सिखाना भी, यानी सिखा। सीखने वाला भी बड़े दर्जे में आ गया, जो सीखे वो भी बड़े दर्जे में आ गया, जो सिखाया वो भी वो अल्लाह के खैर पा गया। ये बहुत बड़ा दर्जा दे रहा है अल्लाह हमारे वास्ते। ये क्या है बोलो, ये जिंदगी एक इम्तिहान का नहीं, अब यहाँ अच्छा है या बुरा है गुजर जाती है ना। ये मुझे सबका शेर याद आ रहा है। अच्छा लिखे तो पास होते, नहीं तो फेल होते। इंटरेस्ट रखता ये हो गया है, एक दिन जब क्लास नहीं रही तो वो पूरा दिन कैसे एकदम कैसा कि माँ इससे गुजरता है। आज सुनिए माशाअल्लाह, आपका इतना इखलास अगर अल्लाह दे दिया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह का दर्जा भी पूरा दे दिन देते हैं। शर्फ कबूल भी अल्लाह देखिए, करता आज क्लास है, आज क्लास है, आज पहले है। ये मैसेज आ गया कि वो आ गया, वो उसमें मुझे बहुत खुशी होती है और पूरी दुआ निकल जाती है। वो एक रग़बत दुआ हो, मांगती, क्या बोलते हैं? दुआ करो नहीं, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह कबूल फरमाए कि दुआओं का अल्लाह आमीन कबूल फरमाए। आमीन अब हमारा आमीन। क्या हो गया मालूम? अब इसका मतलब मैं एक आयत से समझाती हूँ। इन्ना इलल्लाहि राग़िबुन, अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाने वाले, राग़िब अल्लाह की होना। तरफ रग़बत रखने वाले, ये हमारे आमीन अल्लाह की रग़बत अगर पैदा हो गई तो वो एक अल्लाह ये दे दिया है हमारी, हमारा ये खुशकिस्मती है हमारी कि अल्लाह हमारे इसे ऐसा एक ये एहसास दे दिया है, एक इखलास हमारे दिलों में पैदा कर दिया है, वो कैफियत हमारे में आ गई है कि हमारा शौक बढ़ गया है, कुरान से हम जुड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की दुआ करो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज बाहर जाना था, आज प्रोग्राम चेंज होगा ना, मैं मेरा प्रोग्राम क्या करी पोस्टपोन कर ली, लेट से देंगे फिर सुन के देंगे। सुनने में मेरा दिल दिमाग दो भी बहुत अच्छा गुजर जाता। माशाअल्लाह। इंसान की जिंदगी का एक इकबाल का शेर याद आ गया, मैं आपको सुना देती हूँ। ये जो इम्तिहान का है, ये जो इम्तिहान का है जैसे भी गुजर जाती है उसे इन्होंने कैसा फलसफियाना अंदाज में बयान करी। खिलजी में हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हुबाब, समझाती हूँ। क्या क्या इस खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी,
इसे चिंता है कैसे समझाने को जरा समझो, इसे मैं ये समझाना जरूरी समझती हूँ। खिलजिम है हस्ती से, ये एक जगह है, ये खिलजिम है, ये वहां से तू उभरा है मानिंदे हुबाब। खिलजिम बोले तो एक दरिया समझ ले सकते, ये हस्ती का एक दरिया है ना, वहां से तू कैसा उभरा है। हुबाब बोले तो बुलबुला, गुबार। बुलबुला। बुलबुले के जैसा तू उभरा है, यानी तू पैदा हुआ है, तेरी जिंदगी शुरू हुई है इस जिया खाने में। जिया किसे बोलते हैं? घट, जिया घट तो रोशनी, रोशनी। नहीं नहीं, जिया खाना बोले तो घाटे की जगह। दुनिया दुनिया को ये नुकसान। पौधे की तरह नहीं है, हाँ, ठीक है। फायदा हाँ, मिल भी गया तो खत्म होने वाला फायदा ये। अगर सारी जिंदगी से एंजॉय भी कर लिए तो छोड़ को जाने वाली जिंदगी है ये जिया खाना। ये जिया खाना, कैद खाना, कुछ भी कह लें, ये कोई हमारे वास्ते परमानेंट रहने वाली चीज नहीं, इसे छोड़ को जाने वाली। तो इस जिया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी, इम्तिहान के वास्ते भेजा है। सो अल्लाह यहाँ पर हर तरीके से आजमाएगा, ले को आजमाएगा, छीन कर आजमाएगा, देकर आजमाएगा, रहमतें कि बारिश करके आजमाएगा। ये अल्लाह जिस तरीके से भी करे, खाने में, मुख्तार कुल है जैसा इस जिया खाने में, हाँ इस जिया खाने में बोलो, तेरा जिया खाने में तेरा तेरा इम्तिहान, इम्तिहान है जिंदगी। जिंदगी। खिल्ज में हंसी से तो खिल्द में हुबाब, क्या 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 नेक्स्ट लाइन ना, खिल्ज में हंसती। अगर इंग्लिश में फा निकले तो क्यों खिल्द में हंसती। खिल्ज में हंसी से फा वो फिल्ड क्यों क्यों क्यों। अच्छा खिल्जिम, मैं इंग्लिश का स्पेलिंग बोल देती हूँ। खिल्जिम QILZIM, QILZIM। खिल्जिम क्विल्जिम खिल्जिम में हस्ती में हस्ती से तू तू उभरा, तो उभरा है मानिंदे दरिया। मानिंदे उभरा है दरिया मानिंद गुबार गुबार H गुबार हुबाब बोले तो उभार के तो बबल, बबल। अच्छा 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 ओके। खिल्जिम बोले तो दरिया भाई, खिल्जिम बोले तो दरिया, हुबाब बोले तो खिल्जिम। अच्छा 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 दरिया ये दरिया, ये हुबाब बोले तो ये आप इसमें डाल को देखे तो भी ट्रांसलेशन ऑफ इकबाल शेर ये करको डाल को देखे तो भी आपको आ जाता है। गूगल सर्च कर सकते। प्यारा है ये जिंदगी का पूरा फलसफा पूरा निचोड़ मालूम हो जाता है। इतनी प्यारी शायरी है उनकी, कितने दीवाना है, कई फारसी में है, ये भी इसमें भी बहुत फारसी के अल्फाज हैं। ओके माशाल्लाह। ये समझो हस्ती से यानी हस्ती के दरिया से, यानी ये जिंदगी के ये जो पैदा होने का ये चक्कर है ना, इससे तू उभरा है, उभरा है। उभरना, उभरा है मानिंदे हुबाब, हुबाब के मानिंदे बुलबुला, बुलबुला है, कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बड़ी हस्ती है, बड़ा दरिया है ये हस्ती का। ये जो खिल्जिम है ना, ये बोलती नहीं क्या इंसान है पानी का बुलबुला करको। हाँ बोलती है ना, वही है ये। इस जिया खाने में ये जो घाटे की जगह है, ये यहाँ से गुजर ही जाना है, कोई यहाँ परमानेंट रहने के वास्ते नहीं आया है। अब यहाँ तेरी जगह कैसी है, ये इम्तिहान के वास्ते ठहराया गया है। इट्स ए एग्जामिनेशन हॉल, दुनिया इज एन एग्जामिनेशन हॉल फॉर मोमिन। इस जिया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी, ये पूरे इसका निचोड़िया। उन्होंने बोली भी, इकबाल बोली मेरी पूरी शायरी तफसीर कुरान है करको बोली, डिक्लेयर करको है ना, दावा करको है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे अल्लाह अज़ाब है। मैं उसे कोट करती हूँ, जहाँ भी वो मेल खाता है,
वर्डिंग से मेल खाता है।